इस समय यूरोप से लेकर एशिया तक युद्ध चल रहे हैं, लेकिन दुनिया के एक बड़े इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि गोली और गोले से नहीं, हवाओं से डर लगता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े ओशन प्रशांत महासागर की लहरों से ऐसी हवाएं उठी हैं जो एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक को डरा रही हैं। महासागर का मिजाज बिगड़ने का असर यूरोप में हीट वेव और लैटिन अमेरिका में बाढ़ की शक्ल में नजर आ रहा है। मौसम की ये बढ़ती विपदा क्या दुनिया में महायुद्ध कराएगी? सवाल का जवाब आपको मिलेगा स्पेशल रिपोर्ट में। साउथ अमेरिका में भयंकर बारिश और बाढ़। फ्रांस, स्पेन, ग्रीस और ब्रिटेन में भयंकर हीट वेव। जर्मनी, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड से लेकर बोस्निया और हंगरी तक सूखे का असर। यूरोपीय देश इटली हो या वहां से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया, यूरोप से एशिया तक के जंगलों में धधकता दावन। अफ्रीका में भूख से मरते लोग। हमारी धरती इस वक्त प्रकृति के गुस्से का शिकार है। हर तरफ हाहाकार है और सबकी जुबान पर इसके पीछे एक ही नाम है। Because of this El Nino, during El Ninos, we've been in an El Nino since June. As this very strong El Nino event continues to develop. 2 months ago, I warned that El Nino was arriving on our doorstep. Now it is inside the house. The extreme heat is not a future threat. It is here. It is becoming more dangerous. And unless we act to protect people and tackle the root causes of the crisis, it will become deadlier still. आज दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक, जानकार लोग, मौसम के एक्सपर्ट हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अल नीनो या अल नीनियो का ये खतरा मानवता के अस्तित्व को चुनौती देने वाला अब तक का सबसे बड़ा डेंजर बन चुका है। वार्निंग के रेड सिग्नल का वक्त खत्म हो चुका है। अगर हम नहीं चेते तो आने वाले दौर में एशिया से अफ्रीका तक, अमेरिका से यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया से लैटिन अमेरिका तक तबाही के वो मंजर नजर आएंगे जो दुनिया ने शायद अब से पहले कभी नहीं देखे। 2 months ago, I warned that El Nino was arriving on our doorstep. Now it is inside the house and turning up the heat. We have already endured the summer of extremes, record-shattering heat domes, apocalyptic wildfires raging in Spain, France, and far beyond. Thousands of lives lost in the scorching conditions, and global sea surface temperatures with records in June and July. But according to the latest science, this is only a warm-up act. New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Nino is strengthening, adding fuel to a planet already on fire. It's time to stop treating each disaster as an isolated tragedy and recognize the systemic risk that is unfolding before our eyes. And make no mistake, the costs of fossil fuels are measured not only in climate disasters, but also in energy insecurity and geopolitical instability, as we see playing out today in the Middle East and beyond. अल नीनो का असर दुनिया के तमाम देशों पर पहले ही साफ साफ दिख रहा है। यूरोपीय देशों में इस साल गर्मी ने नए नए रिकॉर्ड बना डाले हैं। साउथ अमेरिका में आसमान से कयामत बरस रही है। अफ्रीका में सूखे की वजह से भूखमरी के हालात हैं। भारत के कई राज्यों में मॉनसून बेहद कमजोर होने से 40% तक कम बारिश हुई है। इंडोनेशिया के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। इस साल इंडोनेशिया में ऐसी गर्मी पड़ी है, इतना सूखा है कि बरसों से पानी में डूबा हुआ गांव भी उभर आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तो बस झांकी है। अगले कुछ महीनों में अल नीनो इतना पावरफुल होने वाला है कि 2027 में दुनिया का टेम्परेचर पिछले 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। 2026 so far has been the third warmest year on record through June, but we expect it to get much warmer in the coming months as this very strong El Nino event continues to develop.
And so right now, we think that 2026 is going to end up right around 1.5 degrees above pre-industrial levels, centigrade, which would put it roughly tied with 2024 as the warmest year on record. After a few years where we became a little complacent around climate change, in part because the world was on fire in different ways, the world is now on fire again with climate change in a way that's increasingly difficult to ignore. So I think we're going to start to see, climate go back on the radar of a lot of people, particularly with, 2027 set now to smash all previous records. मौसम रिकॉर्ड बनाएगा तो इसका असर भी इस तरह से दिखेगा। अभी जिस तरह यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंग छिड़ी हुई है, चीन और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ रही है, यूरोपीय देशों में एनर्जी की क्राइसिस है, ये सारे संकट और भी बढ़ेंगे अल नीनो की वजह से। दुनिया में फसलें तबाह होंगी, खाने की किल्लत होगी, ईंधन का संकट बढ़ेगा, महंगाई आसमान छूने चलेगी, देशों पर कर्ज बढ़ेगा, डॉलर की किल्लत होगी, ट्रेड वॉर शुरू हो जाएंगे, कई देशों में सिविल वॉर छिड़ने की आशंका है। इसके बाद क्या होगा, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने तो यहां तक कह दिया है कि कम से कम 5 करोड़ लोग तिल तिल कर भूख से मरने को मजबूर हो सकते हैं। We've been in an El Nino since June. Those conditions involve a warming of the waters in the Pacific. It has impacts on climate all over the world. Past El Ninos have caused a big increase in hunger. So that's why we do these projections. That's why we do the analysis. And what the analysis tells us is that at least 49 million people worldwide will fall into acute hunger as a result of the El Nino next year. There's risk that's already there because of the conflicts and the prolonged conflicts that have existed for years now. There's risks there because of the impacts of this conflict in the Middle East on the global economy and on global food systems. And now you add this El Nino to the mix, while potentially you have a very dangerous combination of risk factors that could result in a rise in acute hunger globally. हमारे देश में भी अल नीनो का इफेक्ट दिखने लगा है। कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है, तो कई राज्य ऐसे हैं जो रेन डेफिसिट के शिकार हैं। फसलों की बीमारियों की वजह से क्रॉप फेल्योर का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में चीनी के दाम में 30% तक इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से सरकार को लाखों टन चीनी इंपोर्ट करने का हुक्म देना पड़ा है। Sugar, see, because of the red rotten disease, which was very unexpected, and also El Nino. Not only in India, in the entire world, the overall agricultural production has come down. So like sugar. तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 330 to 340 lakh ton. All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about it, and that's why we have immediately taken many measures. But what is the requirement of India? India's requirement is around 280 lakh ton, and as on date we have 306 lakh ton. Means more than 20-25 lakh ton we have surplus. I am telling you surplus. हम टैकल करने के लिए एक प्रिकॉशनरी एक मेजर लिया है। जिस साल नीनो का असर इतना वाइड रेंजिंग हो, उसको समझना हम सबके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि अल नीनो दुनिया के कमोबेश हर शख्स की जिंदगी पर असर डालता है। तो आइए आपको बताते हैं अल नीनो के बारे में। अल नीनो असल में स्पेनिश लैंग्वेज का शब्द है, जिसका मतलब होता है बेबी क्राइस्ट यानी छोटे ईसा मसीह। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों के लिए अल नीनो एक अहम वेदर पैटर्न होता है, क्योंकि इसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। अल नीनो वेदर पैटर्न तब बनता है जब दुनिया के सबसे बड़े ओशन प्रशांत महासागर का पानी औसत से ज्यादा गर्म हो जाता है। जब से वैज्ञानिकों ने इस वेदर पैटर्न का पता लगाया है, तब से ये देखा गया है कि अल नीनो हर 2 से 7 साल के दौरान होता है।
इस दौरान सेंट्रल और ईस्टर्न प्रशांत महासागर के पानी का टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। इससे प्रशांत महासागर के ऊपर की हवाएं कमजोर हो जाती हैं और एशिया ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ने की बजाय ठहर जाती हैं। इससे साउथ अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में बारिश और बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं भारत से लेकर इंडोनेशिया तक मॉनसूनी बादल कम बनते हैं, बारिश कम होती है, लिहाजा ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राजील, इंडोनेशिया और इंडिया तक सूखे की आशंका बढ़ जाती है। इसका असर नॉर्थ में यूरोप तक दिखता है। ऐसा नहीं है कि प्रशांत साउथ और सेंट्रल प्रशांत महासागर के गर्म होने का असर सिर्फ एशिया, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक सीमित रहता है। चूंकि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, तो इस ओशन सिस्टम में किसी भी तरह की तब्दीली दुनिया भर के जीव जंतुओं पर असरअंदाज होती है। मसलन अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस साल स्टिंग रे मछलियों की भरमार है, क्योंकि साउथ प्रशांत के गर्म पानी की लहरें कैलिफोर्निया तक पहुंच गई हैं। ये भी एल नीनो इफेक्ट है। अमेरिका में पैसिफिक के गर्म पानी की वजह से स्टिंग रे मछलियों की बाढ़ आ गई है, तो इधर अटलांटिक के इस पार यानी यूरोपीय देशों में इसके उलट दिख रहा है। इस साल फ्रांस और स्पेन से लेकर जर्मनी और इटली तक भयंकर गर्मी पड़ी। हीट वेव की वजह से ग्रीस, स्पेन और इटली के जंगलों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही हैं, नदियां सूख गई हैं, फसलें भयंकर गर्मी में झुलस रही हैं। जानकार कह रहे हैं कि इस साल का अल नीनो वेदर पैटर्न 1877 के बाद का सबसे भयंकर है। 1877 में अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का औसत तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया था। इससे पूरी दुनिया में बारिश का पैटर्न बिगड़ गया था, फसलें तबाह हुई थीं, भूखमरी और अकाल आ गया था। करीब 5 करोड़ लोग मौत के शिकार बने थे। इस साल के सुपर अल नीनो से पहले ही धरती का औसत तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। इस पर से प्रशांत महासागर के गर्म होने की वजह से 2027 में गर्मी के नए रिकॉर्ड बनने की चेतावनी दी गई है। जंगलों के कटने, पेट्रोल, डीजल, गैस और कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल के बढ़ते इस्तेमाल से हम पहले ही ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हैं। नदियां सूख रही हैं, ग्राउंड वाटर लेवल गिरता जा रहा है, बारिश कम होती है और अचानक बहुत ज्यादा होती है। क्लाइमेट चेंज बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इस साल का सुपर अल नीनो हमें याद दिला रहा है कि हम क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सीरियस स्टेप उठाएं, वरना हालात दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे।